Good morning, class. So today we will be looking again at the paper Life and Literature. We've already had a class for this paper last week. So there we had spoken about, the second unit, which was Pathir Panchali, and we spoke about the novel in detail. In the revision class today, which is scheduled from 3 to 4 p.m., I would also be taking up some questions from previous year question papers so that you get a general idea about what kind of questions are asked for this exam and how to answer them. Now, today uh, is my PPT visible? If you can just, inform me. Today we will be looking at the two other papers, which is the two other units, which is Unit 1, Tuesdays with Maury, and दूसरा यूनिट जो हम देखेंगे वो है सुधा मूर्ति का कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स जिसका नाम है जिसका नाम है Wise and Otherwise, right? So these are the two texts that we are looking at today. Now, as I was saying at the last time, that a lot of questions for this paper also talk about life and literature के बीच में link क्या है? How literature influences life and how life influences literature. One of the examples that you can get is from this particular memoir. First of all, the thing that we need to remember is that this Tuesdays with Maury is written by Me- uh, Mitch Albom, and it is published in 1997. Right, so the book was published in 1997. It is a memoir, which means that it is a writing depending on memory, right? And then it also is something that talks about a student-teacher relationship and life lessons. So we find a lot of self-help books today. You must have, seen if you've ever visited a bookstore or if you've, also seen online or heard from friends or read yourself, you would find a lot of self-help books, right? That talk about life, that talk about, how to lead our lives, how to improve certain aspects of our life. So, this book, this memoir is also reflecting on that, but it is based on this man called Mori, who was a professor of the author called Mick Album. And then uh, इन दोनों ये जो ऑथर है ये कई साल बाद around 16 years later he encounters his professor again, right? He gets to know about his professor again, and तब जब उसके प्रोफेसर की हालत बहुत खराब हो जाती है, he's already very old, but he's also afflicted with a chronic illness which is ALS, राइट? जो स्टीफन हॉकिंग की सिचुएशन में हमने देखा था, राइट? स्टीफन हॉकिंग को जो बीमारी थी वही सेम बीमारी है which affects your nervous system, and the idea is that you cannot survive longer than 5 years after the diagnosis, right? So this is the entire context on which this memoir is built. Now the next thing is, let us start with the memoir itself, and हम लोग बात करेंगे about all of these sections. Now, as far as the questions are concerned, the questions largely focus on two themes. One is, what are the life lessons that Mori gives to us? And then secondly, they also talk about mixed, you know, development, because he was a student when he had Professor Mori as his teacher, right? And he has come back 16 years later. So, and then the professor is also afflicted with a chronic illness and he knows that he's going to die,
right? So that entire experience of talking to a person who knows that they're going to die, and how do they take, how do they take their death and how do they take their life? What lessons do they learn in between? All of that becomes the core of this memoir. So, Mike Album is an American author. The book is, the memoir is based in America. It talks about American culture as well. He is an author, a journalist, and a broadcaster. So in the in the memoir itself, in Tuesdays with Maury, यही हमको दिखता है that he is a sports journalist, right? He's working as a sports journalist. He's a professor, and he is somebody who is running after material success, status. As we know, America symbolizes that kind of a culture, right? Wherein we have, a lot of consumerism, wherein we have a lot of industrialization, and there is a lot of, commercialism, consumerism. All of that symbolizes the culture of America. And this is written in the 20th century. So approximately, 30 years ago from now. So you can imagine that, at that time, this was at its peak. So this memoir recounting Album's reconnection with his former professor, Maury Schwartz, before his death from ALS became a bestseller, and it spent 205 weeks on the New York Times list. This book was a commercial success, and the profit is still divided between the family of Maury Schwartz and the author, Mitch Albom. So the book explores the themes like love, forgiveness, and life's meaning. So what happened is that, as I've been telling you, that he got afflicted by ALS, and he continued to teach for a while. When he got to know about the disease, he was, of course, very, very disturbed by the news. Right, his whole world shattered in a moment. He knew that something was wrong with him. Right, the day that he could not dance. Right, so he enjoyed dancing. He was a sociology professor. He enjoyed dancing. He enjoyed, activity in his life. But एक दिन अचानक से ऐसा होता है that he felt like he cannot dance anymore, right? And most of the people, what are the general कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बेसिस पे लोग बिलीव करके चलते हैं कि ये जो है जनरल एस्मा वगैरह के चलते वो शायद इस तरीके से फील कर रहा है, बहुत ड्रेन फील हो रहा था उसको कई दिन से और इस तरीके की चीजें। बट जब उसे अचानक से जो है ऐसे एकदम से पता चलता है, एंड देन ही ड्रॉप्स डाउन एट अ स्टोर वन डे, देन he comes to know that he is afflicted by this grave disease. So by then, जब तक Maury and Mitch regained contact, by then ALS had already taken hold of Maury's life. But instead of feeling shame and instead of feeling a lot of, desperation and um, disappointment as to why he is the one afflicted by the disease. Of course, पहला response तो यही होगा जब भी आपके साथ या किसी के साथ भी, that is the human response. जब भी किसी के साथ भी कुछ बुरा होता है तो पहला ख्याल आता है कि क्यों हो गया, right? What went wrong? What did I do wrong? Or why me? These are the thoughts that uh, cross one's mind when something like that happens. But then he slowly takes control of himself, and then, the positive zeal of his life is also reflected. So their conversations become a reflection of living meaningfully. अभी जो नॉवेल है, एक सॉरी जो मेमोयर है, इसके ऊपर जो सारी बात हो रही है वो है कि मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ में क्या सक्सेस हमारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे, जैसे फैमिली, कल्चर, मैरिज, लव, यू नो एजिंग, डेथ,
So everything that constitutes human experiences will be spoken about in this novel, right? But ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक ले लेता है ये प्रोफेसर, बिकॉज व्हाट ही डज इज ही थिंक्स ऑफ कि वो सारी जिंदगी पढ़ाते आया है, तो वो अभी भी जो है इसको एक लास्ट अपनी रिसर्च के तौर पे ले लेता है कि ये मेरा लास्ट सोशियोलॉजी का रिसर्च यही है कि आई एम गोइंग टू नाउ स्टडी लाइफ, राइट? इट इज द स्टडी ऑफ डेथ इन लाइफ दैट आई एम गोइंग टू डू नाउ. सो for one last time, Mori wanted to teach people about dying, death, and through it about life. So, when we're talking about death, we're also talking about life, is what Mori is pointing out. कि जब हम मरना सीख जाएंगे, as in we'll not be afraid of death. We will accept it as a natural consequence of life. Then we will also learn how to live life more meaningfully. So this is what we are, that is what he's moving towards. Now, most of these things might seem familiar to you because for Eastern audiences, this is like most of Eastern philosophy. The book also draws heavily from Eastern philosophies. This is the critical sort of commentary on the book. For example, there are references to Buddhism, right? There are references to a lot of things that are natural to the Eastern world or that are natural to the Eastern philosophy of Western Eastern philosophy. And there is a lot of simplification in the memoir as well. It has a lot of emotional appeal. It strikes you, but you feel for the character. All of that emotional appeal and emotional aesthetic is there, but uh, there is a lot of oversimplification as well. That is what a lot of critics say, because when you think about chronic illnesses, when you think about terminally ill patients, and when you actually, witness somebody going through that illness and you speak to their caregivers or you speak to the person themselves, and you realize that, it is almost impossible to have the kind of zeal and to have the kind of strength that Maury is displaying. Also, इस मेमोयर में हो क्या रहा है कि उसके जो बीमारी वाली चीजें हैं, जो भी उसके लाइफ की डिफिकल्टीज हैं, उन पे ज्यादा बात ही नहीं हो रही है ना? वो बस ऐसे इन पासिंग मेंशन होता है कि अच्छा अब उसका जो है, अब वो ऑक्सीजन पंप पे आ गया, या अब वो जो है ही कैन नॉट यूज द वॉशरूम ऑन हिज ओन, ही नीड्स हेल्प, या ही इज कफिंग अप सो लाउडली. So all of those things are mentioned in passing. There is not a detailed sort of description of, the physical ailment that he's going through as well. And, maybe maybe the memoir would have felt more realistic. Maybe it would have felt more serious if the disease was also mentioned at length, and how, in the face of such kind of physical adversity, he's able to maintain such positive attitude. It would have also been spoken about. So, if you think about, for example, there could be a common question also that could be asked in the exam. जैसे कि मान लो पूछ लिया पेपर में कि रेजिलियंस के बारे में आपका क्या कहना है, राइट? रेजिलियंस से क्या मतलब है कि लाइफ के सर्कमस्टांसेस डिफिकल्ट होते हुए भी जो हम डिटर्मिनेशन दिखाते हैं, जो कि हम स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं, होपफुल बने रहते हैं. तो ये हमारे दो, जो अभी तक हमने टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं, जैसे कि याद करो तो ये चीज पाथेर पांचाली में भी बहुत क्लियरली थी, राइट? कि वो पॉवर्टी में, डिफिकल्टी में किस तरीके से होपफुल रहते हैं, किस तरीके से रेजिलियंट रहते हैं, हर चीज को फेस करने की ताकत रखते हैं, राइट? सिमिलरली यहाँ पर भी जो है मौरी के कैरेक्टर में दिखता है. सो वन sort of thing that you need to look at. And when we will also look at Vibe and Otherwise by Sudha Murthy, that is also something that we will realize. That Sudha Murthy also appreciates people whom she encounters who show a certain resilience and positive outlook towards life rather than succumbing to cynicism and skepticism regarding life in general.
right? So that is also, one theme that you see across papers, sorry, across tests, and these texts. If you get a combined question, which you generally do, and you get a long answer question, जो कि combined question होता है, तो वहां पर ये चीज आपको help कर सकती है. So now, while Mori was completely in touch with his emotions and able to evaluate his situation through an objective lens, Mitch, on the other hand, lived with fear and pain as his motivating factor. तो एक इंसान जो कि मतलब ऑन द वर्ज ऑफ डेथ है, वो किस तरीके से अपनी लाइफ को पॉजिटिव आउटलुक के साथ देख रहा है। उसके पास कितने लोग हैं जो उसको विजिट करने आते हैं, कितने लोग हैं जो बिना कहे उसकी हेल्प करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उससे मिलने आते हैं, उससे एसोसिएटेड हैं, उसको मतलब किसी चीज में हिचकिचाते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसकी फिजिकल नीड्स जो है ना, अगर उसको हेल्प चाहिए वॉशरूम जाने में, उसको जो है पफिंग हो रही है, उसको कुछ चाहिए, तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स पीपल डू नॉट हेजिटेट while giving it to him, क्योंकि उसका एक तरीके से जो आउटलुक है वो इतना पॉजिटिव है that people respond to him in such a manner. So अब हम we will go through a kind of a chapter wise summary as well. So the curriculum in this chapter, Mitch album introduces the central premise of Tuesdays with Maury. He frames his last meetings with his former professor, Maury Schwartz, as the last class. So अब इस क्लास का स्टूडेंट कौन है? ये क्लास हर ट्यूसडे को, एवरी ट्यूसडे दिस क्लास वुड गेट रिपीटेड, और इस क्लास का स्टूडेंट कौन है? केवल मिच है. ठीक है, मिच एल्बम जो कि ऑथर है, जिसका प्रोफेसर मौरी है, तो मौरी ये क्लास पढ़ाएगा और मिच जो है अकेला स्टूडेंट होगा जो इस क्लास को अटेंड करेगा. ठीक है, अब ये ट्रेडिशनल क्लासरूम नहीं है, राइट? ये क्लास क्लास नहीं है. ये मीटिंग्स कहाँ हो रही हैं, ये क्लास कहाँ हो रही है? ये हो रही है मौरी के घर पर, राइट? मौरी की स्टडी में. मौरी जो है वो अपनी हालत खराब होने के बावजूद भी बेड रिडन नहीं होना चाहता. वो कहता है इफ यू आर ऑन बेड यू आर डेड, right? So he wants to sit in his study, or he wants to have his conversations, his class in his study. So after breakfast every Tuesday these sessions were to happen. और अब इस क्योंकि ये एक लाइफ की क्लास है, तो ना तो यहाँ पर कोई सेट सिलेबस है, ना तो यहाँ पर कोई करिकुलम है, ना तो यहाँ पर कोई जो है बुक्स एंड एग्जाम है. ट्रेडिशनल जो भी हमारा क्लासरूम रिलेटेड एनवायरनमेंट है वो नहीं है, राइट? बस मौरी को अपनी जो भी लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसने अपनी लाइफ में सीखा है, वो उसके बेसिस पे मिच से बात करेगा और उसको सिखाएगा. पर एक पेपर बोलता है मिच कि मुझे लास्ट में एक प्रोजेक्ट की तरह एक पेपर तो सबमिट करना है जहां पर आई हैव टू एक्चुअली से व्हाट आई लर्नड. Throughout these sessions, Maury and Mitch discussed a variety of profound topics: love, work, community, family, aging, forgiveness, and ultimately death. Mitch recalls that their final session, which served as a goodbye, consisted of only a few words, making a quiet yet significant end to their time together. Luckily, Mitch and Maury have been able to say goodbye, right? उनकी जो सेशंस हैं वो कंटिन्यू होते हैं. Around I think 13 Tuesdays they have their sessions, 13 or 14 Tuesdays. So approximately 4 months, right? Approximately 3-4 months they have their sessions, and he's able to talk to him and change himself and develop a different outlook towards life based on what his professor teaches him. So this memoir is that paper, a lasting tribute to his teacher's lessons. In the opening chapter, which also reflects on his college graduation in 1979. तो मिच जो है 20 साल पहले, लगभग not really 20 years, 16 years ago he had graduated.
और तब वो बहुत ही यंग था, आइडियलिस्टिक था। उसके दिमाग में बहुत सारी होप थी फ्यूचर के लिए। वो एक पियानिस्ट बनना चाहता था, बट उसके फादर चाहते थे कि वो कुछ यू नो ट्रेडिशनल सा करियर अपना ले, राइट? जैसे कि म्यूजिशियन का करियर अपना ले, अगर उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। पर जो है, धीरे धीरे लाइफ उसे बिल्कुल ही अलग बना देती है। वो 16 साल में जैसा वो स्टूडेंट लाइफ में था, वैसा बचता नहीं है, राइट? सो पर मौरी जो है मिच का सबसे फेवरेट प्रोफेसर हुआ करता था। And he also, during his farewell from the school, sorry, from the college, he introduced Mori to his parents, and he also gave Mori a gift, a token of appreciation, which was a tan briefcase. And then Mori hugged him, right? So it shows that they had a very close, a very deep relationship as student and teacher as well. Years after Mitch's graduation from Brandeis University, so this is the university, Brandeis University, where Mori taught Mitch. Mori continued to teach there, living a full and vibrant life filled with love, community, and his passion for dancing. But जैसे कि हमने बोला 1994 में उसको ALS डिटेक्ट हुआ. Now what is ALS? Amyotrophic lateral sclerosis, also known as log Gerg's disease, a degenerative neurological disorder, right? So इसमें क्या होता है कि your nerves kind of melt away. Nerves, neurological function जो body का है, nerves जो हैं वो degenerate होने लगते हैं, वो खराब होने लगती हैं, और धीरे 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 बॉडी के organs को impact करने लगती हैं. तो उसे समझ में आ गया था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसके साथ कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, जिस दिन वो डांस नहीं कर पा रहा था। और डिटरमिन्ड टू टर्न हिज एक्सपीरियंस ऑफ डाइंग जो है, उसने ये अपना फाइनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑन डेथ एंड डाइंग। ही वुड बी द रिसर्च अ ह्यूमन टेक्स्ट बुक। तो इसका सब्जेक्ट कौन होने वाला था? वो खुद इस रिसर्च का सब्जेक्ट होने वाला था। तो मिच के बारे में बात आती है। अब जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट कौन है? मिच। सो आफ्टर मिच ग्रेजुएटेड ही मूव टू न्यूयॉर्क विद हाई होप्स ऑफ परस्यूइंग अ करियर एज अ म्यूजिशियन। पर जो है वो ऐसा हो नहीं पाया उसके साथ। फिर उसने जो है अपने स्लो एंड पेनफुल डेथ देखी, स्टमक कैंसर से उसके अंकल की डेथ हो गई थी, और उसके बाद वो बहुत ही चेंज हो गया। ठीक है, उसको लगा कि उसकी भी शायद ऐसे ही प्रीमैच्योर डेथ हो जाए, तो वो जो है अपनी ड्रीम्स को जल्दी से जल्दी अचीव करने के चक्कर में लग गया, राइट? ये डर उसको भी ये डर लगने लगा कि जैसे मेरे अंकल मर गए बिन मतलब यू नो एक तरीके से विदाउट वार्निंग, राइट, एंड अर्ली डेथ एक्सपीरियंस किया, वैसे ही कभी मेरे साथ भी ना हो जाए। तो मेरे को जो सारा काम है वो अभी कर लेना है, मुझे जो सब कुछ अचीव करना है वो अभी कर लेना है। तो उसने एक तरीके से फिर अपने आप को पूरा काम में झोंक दिया। ठीक है, क्योंकि उसकी दो डिजायर्स बन गई, प्राइमरी सिक्योरिटी एंड सक्सेस। तो उसने म्यूजिशियन बनने की जो है अपनी सारी जो चीजें जो परस्यू कर रहा था, जो उसका होप था, जो उसका ड्रीम था कि मैं एक पियानिस्ट बनूं, वो सारी चीजें छोड़ छाड़ के उसने जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री कर ली, और फिर एक स्पोर्ट्स राइटर बन गया, और डेट्रॉइट फ्री प्रेस में काम करने लगा। राइट, ये इंपॉर्टेंट है, डेट्रॉइट फ्री प्रेस। कुछ कुछ नाम हमें याद रखने पड़ेंगे आंसर्स के लिए। तो डेट्रॉइट फ्री प्रेस में वो काम करता था, और यहाँ पर जो है काम करते करते इतना अपने आप को वो काम में झोंक चुका था कि उसने अब लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। वो भूल ही गया था कि वो स्टूडेंट, जब स्टूडेंट लाइफ में था तो वो कैसा था, राइट? सो एक दिन टीवी चैनल फ्लिप करते करते उसे एक मौरी का नाइट लाइन पे एक एपिसोड दिखता है, और जब वो नाइट लाइन का जो एपिसोड दिखता है, तब वो दिखता है कि उसके मतलब उसको फिर मौरी दिखता है, अपना फेवरेट प्रोफेसर, अपना कॉलेज प्रोफेसर। तो फिर वो जो है उसके साथ एक कनेक्ट वापस बनाने की कोशिश करता है। सो एट मौरी, as Maury's condition worsened, he became
known for the wisdom he might impart to those around him. He regularly shared aphorisms about life, creating about 50 in total. One of his friends, Maurice uh, deeply moved by Maury's insights, sent them to a reporter at the at the Boston Globe. Maury's first interview on Nightline was conducted in March 1995, and it captivated the nation. Maury spoke candidly about his experience with ALS, the slow progression of his illness, and how he was preparing for death. He was honest and open in his reflections with his viewers, particularly humorous uh, but poignant remark about dreading the day someone would have to wipe his bottom. So एक इस तरीके का आउटलुक बन गया। देखो जब तुम्हें मौरी के कैरेक्टर के बारे में अगर बात करनी हो तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट? दैट he dealt with his illness in a sort of a profound manner, in a very deep manner also, but it was not an adversity. It was not treated as something, that completely ruined his life. Although he felt so initially. Of course, when he was diagnosed, he was like, upset. How did the world continue to be like it was? Why was the world not affected by, the fact that he's going to die? Right? But eventually he understood. And slowly and gradually, then when he accepted his reality, then he changed completely and he developed a sort of a humor about the entire situation. So he says, Mitch recalls his first interaction with Mori during the spring of 1976 when he was enrolled in one of Mori's sociology classes. Initially uncertain about taking the course, Mitch was persuaded by Mori's approachable and friendly demeanor. तब से ऐसा था, ऐसा नहीं है कि वो मौरी जो है अपनी बीमारी के बाद चेंज हो गया। वो तब से बहुत फ्रेंडली, बहुत अप्रोचेबल, बहुत इजी गोइंग प्रोफेसर था, सोशियोलॉजी पढ़ाता था। और जो है इट वाज इजी टू एस्टैब्लिश कांटेक्ट विद हिम। सो द तो मिच जो है उसकी उस डिमीनर से, उसकी पर्सनालिटी से अफेक्ट होके उसने सोशियोलॉजी का कोर्स ले लिया था। और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। द ओरिएंटेशन, अब कोई भी कोर्स शुरू होता है उससे पहले क्या होता है? ओरिएंटेशन। तो उसने मतलब तुम अगर देखोगे मेमोयर का स्ट्रक्चर उसी हिसाब से चल रहा है, राइट? कि करिकुलम क्या है, स्टूडेंट कौन है, प्रोफेसर कौन है, ओरिएंटेशन होगी, सिलेबस होगा, राइट? तो उस तरीके से, जिस तरीके से एक सिलेबस, जैसे कि एक करिकुलम चलता है, कोर्स चलता है, उसी हिसाब से ये memoir भी लिखा गया है। That is, those are the titles you will find. So the first is the orientation. Mitchell's first visit to Maury's house after their long separation was bittersweet. अब जब वो पहुंचता है पहली बार भी उसके घर, है ना, पहली पहली ओरिएंटेशन वाले सेशन के लिए, तो अब उसका चेंज देखना, राइट? जब हम एंड में जाएंगे तो ये चेंज वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो अब जब वो पहली-पहली बारी जाता है, तो उसका दिमाग उसके काम में लगा पड़ा है बुरी तरीके से, ठीक है? वो सोचता है, उसको पता है कि मौरी उसकी वेट कर रहा है, उसको पता है कि मौरी की हालत खराब है, ठीक है? पर फिर भी वो सोचता है कि मैं एक अपनी जो वर्क कॉल है पहले अटेंड कर लूँ, काम कर लूँ, फिर मैं जाके मिल लूँ, ठीक है? तो एज़ दे एट, मौरी स्ट्रेट फॉरवर्डली आस्क्ड मिच इफ ही न्यू दैट ही वाज़ डाइंग। तो मौरी ने सीधा-सीधा पूछा कि तुमको पता है ना कि आई एम गोइंग टू डाई? तो मिच ने बोला कि हाँ, आई वाज़ अवेयर एंड आई हैव कम, यू नो आई आई हैव कम टू सी यू। तो वो बोलता है कि मैं जो है इसके बारे में तुमसे बात करना चाहता। तो उनकी जो फाइनल क्लास है, वो जो मेमोयर को शेप करेगी, वो यहाँ से इस ओरिएंटेशन से शुरू होती है। मिच को याद आता है कि वो जब कॉलेज में था, तो मौरी उसे कोच बुलाता था। वो लोग दोनों टीचर स्टूडेंट वॉक्स पे भी जाते थे, बहुत बात करते थे, और मौरी उसे हमेशा इनकरेज करता था कि तुम अपने पैशंस को फॉलो करो, तुम अपनी जो तुम्हारे हॉबी है उसको टेक अप करो। तो
एक दिन जब ये लोग मिलते हैं तो 2 घंटे बात होती है, और फिर मौरी बताता है मुझको कि लोग अब मुझे किस नजरिए से देखते हैं। पहली चीज तो है, सोशियोलॉजी प्रोफेसर जो है, मतलब ज्यादातर लोग साइंस एंड इंजीनियरिंग वगैरह लेना चाहते थे, तो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर के पास ज्यादा कोई कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहता था। पर उसने मौरी ने एक्सप्लेन किया कि अ, तुम पर मिच एक्सप्लेन करता है कि मौरी एक ऐसा प्रोफेसर था जिसके पास हम कभी भी आ सकते थे। उसका जो आउटलुक है, और मौरी ने भी ये बात कही थी कि बाकी सारी चीजें तुम भूल जाओगे, बट यू विल रिमेम्बर द इंटरेक्शंस दैट यू हैव विद मी। पर अब मौरी को लोग कैसे देखते हैं, जब वो क्लासरूम में जाता है, अपना उसने पढ़ाना एकदम से छोड़ा नहीं। जब उसको एएलएस भी डिटेक्ट हो गया, वो जब तक जान सकता था वो जाता रहा, राइट। उसको ये नहीं लगा कि अब मैं बीमार हूं तो मुझे छोड़ देना चाहिए, अब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। सो नाउ पीपल सॉ हिम डिफरेंटली, लाइक ही वाज अ ब्रिज बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो टेकिंग अटेंडेंस, हमने बोला क्लासरूम वो रहेगा मिच का सॉरी मौरी का स्टडी। Mitch is deeply moved by his reunion with Maury, who has never compromised his ideals. As Maury faces the final stages of his illness, he's surrounded by people who genuinely love and care for him. ये बहुत एक important सा aspect बन जाता है. He has a support system. He has people. He has invested his life in relationships, right? In building relationships, in maintaining them. He was writing letters to Mitch also. राइट। पर मिच अपने काम में इतना खो गया, वो उसने जो है इतनी साल अपनी यूनिवर्सिटी से आने वाले लेटर्स को इग्नोर भी किया, राइट। सो देर इज अ जेन्युइन सॉर्ट ऑफ लव एंड केयर दैट Mori displays, and that is what he receives in return from people. While covering the Wimbledon tennis tournament, Mitch suddenly becomes aware of the shallow celebrity culture he's immersed in. तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था, अचानक से उसे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कर क्या रहा हूँ। मतलब ये सेलिब्रिटी टाइप का जो है लोग हैं, इनका मैं इंटरव्यू लेता रहता हूँ, लोग उसी में, और बड़ा शालो सा, बड़ा इट हैज नो डेप्थ। So Maury had always chosen to focus on deep human connections enriched with life. और मिच की लाइफ, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, right? If you want to take a picture, you can take a picture of this particular slide, because this is extremely important that you have to, think about how is Maury different from Mitch. Then you also need to think about how is the version of the earlier Mitch, student days Mitch, different from the Mitch that we encounter after uh, he has had these classes and witnessed the death of his favorite professor. After a week of self-reflection triggered by his conversations with Maury, Mitch resolves to visit him again. The decision is hastened by a writer's strike at the Detroit Free Press. अब सर्कमस्टांसेस को एड करने के लिए एक और चीज हो गई है कि स्ट्राइक चल रही है डेट्रॉइट फ्री प्रेस में, जहां पर ये मिच काम करता था। तो मिच का तो सिंपल सा फंडा है भाई, काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर अब जब स्ट्राइक ही चल रही है, जब काम ही नहीं है, तो जब मतलब प्रोटेस्ट चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो अब उसको क्या करेगा, अब वो जो है डिसाइड कर लेते हैं कि वी विल आई विल मीट यू। एंड देन उसको याद आता है धीरे धीरे कि ये हमारा एक रेगुलर चीज होती थी कि हम मिलते थे। तो डिसाइड करते हैं कि हम लोग हर ट्यूसडे आफ्टर ब्रेकफास्ट मिलेंगे। तो मौरी जो है शुरुआत में दिखता है कि वो वर्ल्ड के साथ एंगेज रहता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है हर रोज सुबह, और वो कहता है कि ये मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि अब जो है मेरी इलनेस की वजह से मैं थोड़ा और ज्यादा लोगों की सफरिंग से एम्पथाइज कर पाता हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा और सहानुभूति महसूस करता हूँ लोगों के साथ, क्योंकि मैं खुद बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में। As he speaks, Mori tears up and admits that he cries frequently now. When Mitch seems uncomfortable, Mori reassures it that it is okay for men to cry. This reminds Mitch of a similar conversation they had 20 years earlier, also on a Tuesday. तो नॉस्टैल्जिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बारी बारी जो भी उनकी कॉन्वर्जेशंस होंगी, उससे Mitch learn कैसे कर रहा है, through introspection and through reflection and through nostalgia. He would remember how he was, right?
he would miss that person also. He would realize कि मैं कितना चेंज हो गया हूँ, और वो रियलाइज करेगा कि मौरी उसको क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है, एंड अल्टीमेटली व्हाट इज रियली इम्पोर्टेंट इन लाइफ. So Mori calls him Tuesday people. During this conversation, Mori shares one of the greatest lessons he has learned in life. The most important thing in life is to learn how to give out love and to let it come in. तो ये जो कुछ कुछ सेंटेंसेस हैं, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कोट करने के लिए हेल्प करेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल ही सेज लव ईच अदर और डाई, लव ईच अदर और पेरिश. So love, forgiveness, compassion, empathy, right? These are the things that forgiveness, these are the things that he focuses on. तो पहले ट्यूसडे उन्होंने बात की थी about world. Next Tuesday they talk about feeling sorry for yourself. तो मिच जो है अब बोलता है कि मैं 700 माइल जो है ट्रैवल करके फ्लाइट लेके हर ट्यूसडे को मौरी से मिलने आता था. और अब जो है पिछली बार मतलब पहले तो वो काम वाम अपना करते हुए आता था, पर अब उसने वो सब छोड़ दिया. वो अब बस उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना चाहते हैं, राइट? तो ऑनगोइंग राइटर स्ट्राइक डेट्रॉइट जो है काफी वायलेंट हो गई है, पर मिच जो है अपने मौरी के साथ के इंटरेक्शंस में काफी खुश है. अब मिच क्या करना शुरू कर दिया, उसने एक रिचुअल शुरू कर दिया. वो हमेशा ब्रेड एंड सर्कस नाम के एक रेस्टोरेंट से मौरी के लिए कुछ कुछ खाने के लिए लेके जाता था जब भी उसके घर जाता था. मौरी's condition worsens, forcing him to rely more heavily on others for daily tasks. और जब भी और मिच फिर उसे पूछता है, what does feeling sorry for oneself means? It means that you experience self-pity. You think that, uh, your circumstances are pretty bad and then you feel sorry for yourself. तो कहता है कि मौरी बोलता है कि हाँ, मुझे अपनी जो है हालत पे दुख होता है, एंड आई फील सॉरी फॉर माई सेल्फ, बट मैं अपने आप को उस फीलिंग में इंडल्ज नहीं करके रखता. मैं जो है उस फीलिंग से अपने आप को उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करता हूँ और उसको डिटैच होता हूँ उससे, उसको लेट गो कर देता हूँ, राइट? एंड देन so ye wala idea again, you can see it as a very Buddhist kind of an idea, right? That you experience a feeling fully and then you just let go of it. It does not mean being neutral, right? जो हम, like, in today's world, we kind of say that, being Zen or being stoic. So that stoicism is also coming from the fact that, you experience a feeling fully. It does not mean that you will not experience sadness. कुछ होगा तो तुम्हें कुछ फील नहीं होगा, ये नहीं मतलब है इसका. इसका मतलब ये है कि कुछ फील भी होगा, उसको फील पूरी तरीके से अपने आप को करने दो, एंड देन लेट गो ऑफ दैट फीलिंग. So for the third meeting, Mitch brings a tape recorder wanting to document Maury's wisdom for future reference. मिच को पहले तो ऑकवर्ड लगता है कि वो ऐसे माइक पे उसके रिकॉर्ड करेगा सेशंस, कॉन्वर्सेशंस, बट मौरी इज ओके क्योंकि जो उसको लगता है कि अच्छा अगर इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए चाहिए तो देन इट इज ओके. Mitch's true motivation for recording their conversations is to preserve Maury's teachings about living and dying. तो वो एक्चुअली मौरी की जो एक सीख है अबाउट लिविंग एंड डाइंग उसको हमेशा के लिए प्रिजर्व करना चाहता है, विच इज व्हाई ही डज सो. और वो जानता है कि अब डिफरेंस क्या है. जब हम नॉर्मल लाइफ में ऑल ऑफ अस नो दैट वी आर गोइंग टू डाई, राइट? बट डू वी लीड आवर लाइफ थिंकिंग दैट वी आर गोइंग टू डाई? Not really, right? We do, we are planning for life, we are not really planning for death, most of us, right? So what happens is when you live with that acute awareness of death, then Mitch realizes that since Mori is living with that acute awareness of death, therefore his perspective on life would have strengthened. अब बहुत शार्प हो जाएगा, वो जो फालतू की इधर उधर की जो सारी नॉइज होती है वो नहीं, राइट?
So his perspective will be absolutely straightened out. And what he will teach in these sessions, what he will say in these sessions is going to be the ultimate essence of life. Right? So that is why he wants to know that and he wants to see. उसको ये तो realize हो गया तुम already देखोगे कि उसको जब वो मतलब मौरी का वो सेशन देखता है करता है तो उसको अपनी लाइफ में कुछ मिसिंग है ये तो ऑलरेडी रियलाइज हो चुका है कि वो किस तरीके के काम में और किस तरीके से अपने सेलिब्रिटी कल्चर और उन सब में बिल्कुल ही ऐसी शालो सी चीजों में फंसा पड़ा है वो तो उसको रियलाइज हो गया था तो अब उसको ठीक करने का तरीका क्या है he has to incorporate something that is going to you know give him more sense of clarity on how to lead his life. And that clarity he's seeking from Maury's experience and Maury's teachings. With this in mind, Mitch becomes a willing student once again on the flight home. Mitch makes a list of topics. तो अब वो सोच लेता है कि मैं हमको किस किस बारे में बात करनी है. तो the third Tuesday they talk about regrets, right? Regrets के बारे में मौरी से पूछता है मैच तो वो बोलता है कि मेरे एज सच मतलब हाँ रिग्रेट्स हैं द ओनली थिंग दैट ही रियली डीपली रिग्रेट्स इज कि उसने जल्दी माफ नहीं किया और एक इन जो उसका फ्रेंड था ही डाइड ऑफ कैंसर एंड ही रिग्रेट्स दैट ही डिड नॉट फॉरगिव हिम इन टाइम अब इस दौरान हमने एक बार ही देखा था नाइट लाइन का एक एपिसोड में पहले मौरी ने देखा था है ना ये मिस्टर कॉपल करके एक आदमी है जो कि वो नाइट लाइन के एपिसोड रन करता है ठीक है तो वो कॉपल वाला एक इंटरव्यू देख के मौरी का यहाँ पे भी दिखता है हम किस तरीके से सेंसेशनलाइज करना चाहते हैं न्यूज वाले और मीडिया वाले चीजों को राइट तो वो डेथ को डेथ की तरह नहीं देख रहे हैं वो सेंसेशनलाइज कर रहे हैं इस पूरे एक्टिविटी को राइट दे वांट टू सेंसेशनलाइज मोरीज डेथ ऑल्सो तो वो धीरे धीरे जब वो सोचते हैं कि जब ज्यादा मौरी की हालत बिगड़ जाएगी तब जाके वो उससे बात करेंगे बट मौरी कहता है कि there is no point of doing that because I might just lose my ability to speak because this disease is eventually going to hurt my lungs and then I will not be able to talk. So he tells Koppel that while visits from loved ones lift his spirits, the thought of losing his ability to speak and use gestures is deeply depressing. I talk with my voice, I gesture with my hands. This is how I give to people. तो उसको जो है वो उसको मालूम है कि ये सब उसके साथ होने वाला है now the story kind of moves into a flashback into Maurice Schwartz's life right कि वो कैसा था उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था क्या सब चीजें थी तो उसकी अर्ली लाइफ वाज मार्क्ड बाय अ लॉट ऑफ स्ट्रगल बोथ इमोशनल स्ट्रगल एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल एक्सेट्रा क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वो पुअर रशियन इमिग्रेंट्स थे फादर जो है फॉरेन इंडस्ट्री में काम करते थे और मदर जो है कैंडीज बेचती थी तो जब मौरी 8 साल का था तब उसकी मदर की डेथ हो जाती है एंड मौरी जो है वही होता है वो लड़का जो कि मतलब वो लेटर पढ़ता है जिसमें उसके मदर की इंफॉर्मेशन ऑफ डेथ थी राइट तो उससे बहुत डीपली इफेक्ट हो जाता है वो एंड देन Mori, every morning he would go to the synagogue to pray, seeking solace, and in evenings he sold magazines to help his family make ends meet. So उसको बहुत सारा मतलब अब मदर नहीं है तो all his emotional dependency is on the father, but but father does not provide the emotional support that Mori needed. So मौरी के फादर जब रीमैरिज कर लेते हैं तो उनकी स्टेप मदर आती है एवा एंड शी बिकम्स अ वेरी सपोर्टिव एंड लविंग फिगर टुवर्ड्स मौरी एंड देन मौरी और डेविड जो उन दोनों हैं भाई उनको एजुकेशन परस्यू करके अपनी पॉवर्टी से बाहर निकलने के लिए अब वो इंस्पायर करती है एंड एवा के साथ मौरी को बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया है तो शी इज अ वेरी सपोर्टिव स्टेप मॉम बट
The fact is that Maury is deeply affected by the death of his own mother also, and he wants to talk about that to somebody. बट उसके फादर जो है वो मना कर देते हैं कि एवा से तुम कभी अपने बायोलॉजिकल मदर की बात नहीं करोगे, राइट? तो वो मौरी जो है उससे भी काफी डिस्टर्ब रहता है, बट एनीवे वो किसी ना किसी तरीके से प्रे करके और सब चीजें करके उन चीजों से जो है अपने आप को थोड़ा संभालता है, कंफर्ट करता है. In his teenage years, Maury's father took him to a fur factory hoping to secure him a job. तो फर फैक्ट्री जाते हैं. पुअर इमिग्रेंट्स तो थे, मुसीबत तो थी. पर जब वो देखता है उस जगह की हालत, वो देखता है इतना एक्सप्लॉइटेटिव एनवायरनमेंट है, यहाँ पे तो मैं काम नहीं कर सकता. फिर जो है वो इसलिए टीचिंग का करियर यूँ आप अडॉप्ट करता है कि वहां पर लोगों की आप हेल्प कर सकते हो विदाउट कॉजिंग हार्म, राइट? और इसीलिए वो लॉ और मेडिसिन का करियर नहीं लेता, क्योंकि उसे एक नॉन एक्सप्लॉइटेटिव करियर चाहिए होता है. ठीक है, तो हमें मौरी के बारे में आपसे कुछ डिटेल्स पता चलते हैं. नेक्स्ट, द फोर्थ ट्यूजडे दे टॉक अबाउट डेथ. He advocated for living with constant awareness of death, जो हम बात कर चुके हैं, because consciousness would lead people to live more fully and purposefully, right? So Buddhist practice of asking oneself daily the confines of one religion. देखिए क्या कहता है कि कहता है कि मैं डेथ के साथ प्रिपेयर्ड कैसे हुआ, राइट? डेथ के साथ एक अब मतलब ऑक्सीजन मशीन लग गई है मौरी को, तो वो कांस्टेंट रिमाइंडर है कि भाई डेथ आसपास है. तो मिच पूछता है उसे डेथ के बारे में, और वो कहता है कि डेथ से जो है डरने की कोई बात नहीं है. डेथ इज द इवेंचुअल रियलिटी, राइट? एंड इनफैक्ट अगर हम लाइफ खुल के तभी जी पाएंगे जब हम कॉन्शियसली इस uh, विश्वास के साथ जी रहे होंगे दैट वन डे वी आर गोइंग टू डाई. And he says that we should always keep that thought running in our minds, that if this is the day that I'm going to die, right? That is what Buddhism also suggests, he says. So he says कि उससे जो है उसे काफी होप मिलती है, काफी हेल्प मिलती है in order to live his life as well. So अब जो है वो बहुत सारे, अब है तो वो जूविश एक्चुअली. मौरी है ट्रेडिशन, मतलब बाय बर्थ ही इज अ जूविश गाय, बट ही इज ही इज वेलकमिंग टुवर्ड्स ऑल रिलीजन. और वो ऐसे बाउंड्रीज में बिलीव नहीं करता. ही थिंक्स ऑफ humanity at large. He thinks of a more humanitarian approach to life, does not believe in class, caste, gender, or race, etc. And in fact speaks against all of that. Remember, he's a sociology professor also. So the fifth Tuesday, we talk about family. Now, during Mitchell's next visit, Maury could no longer hold a handheld microphone. तो अब उसके लिए वो लैवेलियर माइक्रोफोन लगा के लाता है, जो कि हम क्लिप कर सकते हैं, राइट? अब छोटी छोटी बेसिक चीजें भी फिफ्थ ट्यूजडे तक उसके लिए डिफिकल्ट होती जा रही. अब फैमिली के बारे में जब बात छिड़ती है तो मौरी भी बड़ा परेशान सा होता है, बट वो बोलता है कि फैमिली इज द कॉर्नर स्टोन फॉर लाइफ. फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको फैमिली की शायद वैल्यू ऐसे रियलाइज ना हो इन लाइक डे टू डे लाइफ, बट फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ. व्हेन एंड वो क्योंकि फैमिली मेंबर्स ही हैं जो आपको जो है रीजन देते हैं, पर्पस देते हैं, कंफर्ट देते हैं, केयर देते हैं, राइट? तो बोलता है कि मैं बोलता है पर हमारी जनरेशन में, सो देयर इज आल्सो काइंड ऑफ कमेंट्री यू वुड सी अबाउट द करंट सिनेरियो इन अमेरिका, राइट? द 20th सेंचुरी, इन द 90s, 1990s अमेरिका में क्या चल रहा था उसके बारे में भी एक तरीके से बात है. बट देन द मेमोयर इज आल्सो टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल थीम्स, family, love, forgiveness, or death, life, um, marriage, all of these very universal things, regrets and grudges all of these are things that are extremely universal. So on the one hand, the memoir is specifically talking about Mori, but then the teachings that he gives
And the way in which he answers those questions, it has a very universal appeal, which is why the novel, sorry, the memoir should have enjoyed such a great commercial success as well. तो वो बोलता है कि हमारी जनरेशन मिच बोलता है कि भाई हमारी जनरेशन में तो लोग फैमिली नहीं शुरू करना चाहते हैं. So Mori doesn't offer a prescriptive advice, but he says that parenthood is unlike any other thing. If you want the experience of having complete responsibility for another person, only then you should become pets. राइट. फिर वो बात करते हैं अपनी अपनी लाइफ के बारे में. मिच बताता है कि उसके भाई को जो है कैंसर है, पर वो जो है मिच का भाई किसी से ज्यादा बात नहीं करता है, मिच से भी ज्यादा हेल्प नहीं लेना चाहता है. और मिच जो है काफी इस चलते परेशान रहता है. वो हेल्पलेस फील करता है कि मेरा भाई सबसे गुजर रहा है, बट यू नो मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा. तो मौरी जो है उसका पेन समझता है और थोड़ा-सा उसको कम्फर्ट करता है कि अंडरस्टैंडिंग दैट परहैप्स दिस वाज़ वन ऑफ द रीज़न्स व्हिच हैड बीन ड्रॉन टू द रिकनेक्शन. उसको समझ में आ जाता है कि इस वज़ह से ही शायद मेरे साथ ज़्यादा रिलेट कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो अपने भाई को नहीं हेल्प कर पा रहा है और वो वहाँ पे हेल्पलेस फील कर रहा है. तो कहीं न कहीं से वो एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन सीक कर, राइट? तो 6th Tuesday they talk about emotions. Mitch arrived for his next visit. Maury's wife, Charlotte, greeted him at the door. She informed him that Maury had been struggling but was eager to see him nonetheless. अब जो है वो जो खाना लेकर आता था उस रेस्टोरेंट से, वो भी नहीं खा पा रहा है वो. अब वो लिक्विड डाइट की तरफ जा रहा है क्योंकि स्वॉलोइंग बड़ी मुश्किल होती जा रही है. पर तो फिर मैं हेजिटेट करता है कि मे बी आई शुड कीप अवे, बट वो बोलता है कि नहीं बहुत वो बोलती है नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है एंड मॉरी रियली सीक्स योर प्रेजेंस. सो ही लुक्स फॉरवर्ड टू each of these visits. So let us continue. So this session Mori talks about his thoughts on detachment and says that everything is impermanent. वही बुद्धिस्ट टीचिंग की सब कुछ impermanent है. किसी भी चीज के साथ आप मुंह डेवलप मत करो, किसी भी चीज के साथ क्लिंग मत करो, अटैच मत हो, राइट? तो अब इस चीज को समझ के वो कंफ्यूज हो जाता है. मिच कहता है एक तरफ तो आप कहते हो कि लाइफ को खुल के जियो, लाइफ में जो है लोगों से कनेक्ट करो, लाइफ में आप जो है हर एक्सपीरियंस को एम्ब्रेस करो. दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि भाई डिटैच हो जाओ. तो कहते हैं कि वही वाली जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि हर इमोशन को फुली एक्सपीरियंस करके फिर आपको उसको लेट गो करना सीखना होगा, ये समझ के कि इट इज़ अ ट्रांजिटरी फेज़. इट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉरएवर, राइट? So that is something that you have to develop. It does not mean that you will not feel a certain emotion. It means that you will feel a certain emotion to an extent or to the full, and then you will also understand that it is an impermanent thing and I have to let go of it. नाउ प्रोफेसर पार्ट 2. तो एक प्रोफेसर के बारे में एक पार्ट एक था और अब दूसरा पार्ट एक और चैप्टर आता है. इन हिज अर्ली करियर मौरी वर्कड एज अ रिसर्चर एट अ मेंटल इंस्टीट्यूशन. अब मौरी का भी किस तरीके से दिमाग डेवलप हुआ है, वो किस तरीके से ऐसा बना है, उसमें भी हमको एक इंसाइट मिलती है. एक तो उसका हमने बचपन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं उसका अर्ली करियर कैसा रहा था. तो वो एक रिसर्चर था एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में. तो उसने रिसर्च जब की, इसलिए की थी कि थोड़ा-सा लोगों की हेल्प कर पाएगा, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा सोसाइटी में. और जब उसने वो मेंटल इंस्टीट्यूट में काम किया, तब उसको ज़्यादा अच्छे से ह्यूमैनिटी की समझ मिली. Mori observed that the patients, though labeled as mentally ill, had the same fundamental needs as anyone else, right? So he understood that, there are fundamental needs that every human being has. Maybe, they might be termed as mentally ill, they might be normal, they might be, any kind of people, but there is a basic human need. And that human need is to be witnessed, it is to be seen, it is to be acknowledged, it is to be understood, right? So, he saw that a lot of people also come from rich families in mental institutions में.
कुछ नहीं बचा सकता है आपको, राइट? मनी विल नॉट save you from, you know, having a mental illness. Money is not going to save you from achieving, you'll not be able to achieve true happiness just because you have money. So after 5 years at the asylum, Maury then joins the Brandeis University as sociology professor. And 1960s में student revolution बहुत हो रही है, right? In different parts of the Western world. Social and cultural upheaval हो रहा है अमेरिका में. Students जो हैं बिल्कुल at the forefront of revolution है, और इस वक्त जाके मौरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है इन द social change that they are asking for. So Mori transformed his classroom into a space for open discussion and experiential learning. वो ट्रेडिशनल प्रोफेसर भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो जो है बस लेक्चर दे रहा है. ही इज, ही इनवाइट्स ओपन डिस्कशंस, एंड उसका फोकस हमेशा पर्सनल डेवलपमेंट पे रहता है रादर देन करियर प्रिपरेशन पे, राइट? तो सोशल साइकोलॉजी, मेंटल इलनेस, ग्रुप प्रोसेसेस, ये सब पे उसने पढ़ाई किया है. और बच्चे उसको क्वेश्चन करते थे कि ये क्या फालतू डिसिप्लिन हैं, राइट? हमको इससे क्या मिलेगा? बट मौरी जानता था कि ये एक्चुअल चीजें हैं, एंड विच इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल still return to him. A lot of his students came to visit him. Every Tuesday, they talk about the fear of aging. So when Mitch returns a week later, Maury has reached a new level of dependency. अब जो है उसको टॉयलेट यूज करने के लिए भी हेल्प चाहिए, ठीक है? ब्रीदिंग और सॉलोइंग के अलावा हर चीज जो है उसके लिए डिफिकल्ट होती जा रही है. तो अब इस हालत में वो अपना पॉजिटिव आउटलुक कैसे मेंटेन करके चलता है, मुझे पूछता है. तो वो कहता है कि मेरे को कोई डिपेंडेंसी से प्रॉब्लम नहीं है. देखो, when you when you're kind of dependent on somebody to provide you with the basics, right? You cannot even use the toilet on your own. Then it creates a very disturbing sort of dependence. You feel completely helpless and powerless, right? So the idea is that Mori also sees that positively. He says कि भाई बचपन में मेरे को तो ऐसा फील हो रहा था that I'm a child, right? क्योंकि अमेरिकन कल्चर बहुत ग्लोरीफाई करता है इंडिपेंडेंस को, बट वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. यू नो हाउ सोसाइटी फंक्शन, how humanity functions is so dependent on each other. We are not, functioning individually, so to say. So he says कि ये जो है, अब मेरे को ऐसा लगता है कि I've become a child again, and now there everybody is, helping me out with the basic tasks. जो बचपन में जो मैंने केयर गिविंग और सब कुछ मिस की है, वो अब मुझे लाइफ दोबारा एक मौका दे रही है कि मैं एक बच्चा बनने का एक्सपीरियंस दोबारा से जी. For Mori, this opens the door to receiving unconditional love from his caregivers that he never experienced in childhood, right? So there is unconditional love that he receives. Everybody who comes to him, comes to visit him, comes to talk to him, they have unconditional love for him, right? People genuinely out of nowhere want to help him out, right? So he says, now this shift the topic to aging, and he says that he, like, Mitch says ki aging, so of course people feel afraid of aging. People, the old people also envy the young, right? Envy the youth, because during your youth you're more active, and you're able to do a lot of things that you would not be able to do in your older age. पर मौरी कहता है ऐसा कुछ नहीं है. Why should I be envious of things that I've already done before, right? And ये कोई competition थोड़ी ना हो रहा है, between who is like, what can older people do or what can younger people do. But he says there is an advantage to aging as well. A lot is that noise disappears. A lot is that, um, you gain a lot of wisdom. You gain a lot of sense and logic about living of life. You understand in your youth, you are kind of troubled. You are
you are confused, you are living in a chaos. But as age progresses, they are, this is an inevitable fact of life. Everybody is going to age. Even the young people, if you are kind of, envying the young, if you're jealous of the young, they are also going to age, just like you are aging. So that is defined for everybody, right? So ये says कि जब अपने आपने यूथ अच्छे से एंजॉय करके जी होते हैं, तब आपके अंदर वो एनवी भी नहीं आती। आपको एनवी तभी लगती है, आपको जेलसी तभी होती है, जब आपको लगता है कि मेरी कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स रह गई मेरे बचपन की, मेरे यूथ की। तो जब आप लोगों को वो सब चीज़ें करते हुए देखते हो, तब आपको बुरा लगता है। बट अगर वैसा नहीं है, तो यू फील कंटेंट विद योर लाइफ। तो कहते हैं कि हाँ, मेरे को थोड़ा-सा इस चीज़ के बारे में बुरा लगता है कि आई कैन नॉट डांस एंड स्विम, बट मैं जो है उस चीज़ को अपने डिटैचमेंट में लेकर आता हूँ एंड आई लेट दैट फीलिंग। और लाइफ हम पास्ट में नहीं जी सकते, लाइफ हम फ्यूचर में नहीं जी सकते, लाइफ तो हमें प्रेज़ेंट में ही जीनी है। सो इट इज़ मैंडेटरी टू एक्सेप्ट द प्रेज़ेंट। नाउ द 8th Tuesday they talk about money. So Mori is in good spirits because a local Capella group has performed for him. तो लोग हमेशा आके उसके लिए जो है, जो भी छोटी-छोटी चीज़ें करते हैं, उसमें वो बहुत एन्जॉय करता है लाइफ़, राइट? तो हमेशा उसको जॉय मिलती है छोटी-छोटी चीज़ों में, सिंगिंग, लाफिंग, डांसिंग, राइट? और वो बहुत सारे मटीरियलिस्टिक प्लेज़र्स में अपने आप को खोता भी नहीं है। सो ही क्रिटिसाइज़ेज़ द अमेरिकन ऑब्सेशन विद मटीरियलिज़्म। मनी की बात हो रही है, मटेरियलिज्म के ऑब्सेशन को क्रिटिक करता है। बोलता है कि ये जो हमारी मनी माइंडेडनेस है, हम हमेशा सोचते रहते हैं हम पैसा बनाएँ, पैसा बनाएँ, पैसा बनाएँ, पैसा बनाएँ, पैसा बनाएँ। तो ये सारी की सारी चीज़ जो है ये हमें एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ से अवे ले जाते हैं। ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है बिकॉज़ यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी। राइट? लोगों के पास जो जॉब भी है उसका भी खतरा है कि वो जो है, वो रहेगी भी या नहीं रहेगी। तो जब आपके पास इनसिक्योरिटी हो जाती है तो लोग ऑटोमैटिकली सेल्फिश हो जाते हैं। फिर वो और किसी के बारे में नहीं सोच सकते, फिर वो अपने बारे में ही सोचते हैं। और फिर वो धीरे-धीरे मनी को एज़ गॉड समझने लगते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। ये वाली फीलिंग आ जाती है और ऐसा लगता है कि जितना हमारे पास है उतना काफ़ी नहीं है। राइट? जबकि लाइफ में एक्चुअल वैल्यू किसकी है? लाइफ में एक्चुअल वेल्थ जो आपके पास वो है कनेक्शंस की। दैट योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, द पीपल यू एसोसिएट विद, दैट इज़ द एक्चुअल वेल्थ दैट ही स्पीक्स अबाउट, राइट? So now this is a perspective that is completely opposite to what Mitch has displayed, right? Or what Mitch has been talking about, right? Mitch को तो लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है मनी, पर वो कहता है कि जितना इम्पोर्टेंट मतलब कितना इम्पोर्टेंट, is it more important than your people, right? So that is something that the memoir hints on. And all of this is slowly changing Mitch's perception about life. 9th Tuesday, they talk about how love goes on. तो मिच अब जो है बड़ी बुरी हालत में है क्योंकि डेट्रॉइट फ्री प्रेस जहाँ पर वो काम करता है वहाँ की जो स्ट्राइक चल रही है वो खत्म ही नहीं हो रही है और बिल्कुल सेंसलेस वायलेंस भर गया है वहाँ पर। बुरी हालत हो रही है। वो अपने भाई के साथ रिकनेक्ट कर रहा है, भाई नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है और मौरी जिससे वो हर हफ्ते मिलने आता है उसकी हालत भी खराब हो रही है। तो ऐसा लग रहा है उसको वो चारों तरफ से परेशान है। तो he is on a catheter now and he requires constant care. तो मिच हर विजिट पे, हर ट्यूसडे जब आता है, हर हफ्ते जब आता है, वो देखता है कि मौरी की हालत थोड़ी और, थोड़ी और, थोड़ी और खराब हो रही। तो इस बारी मौरी बताता है मुझको ऐसी बातों-बातों में कि हाँ, वो टेड कोपल का आया था मेरे पास बात करने के लिए और उसने बोला कि एक और इंटरव्यू शेड्यूल करना है हमें, पर थोड़ा कुछ और ड्रामेटिक तुम्हारी हेल्थ कुछ और मतलब कुछ और ही तुम्हारे साथ कुछ बड़ा हो जाए, ठीक है? जब तुम्हारी बिल्कुल ही हालत नहीं रहेगी तब हम वो शूट करेंगे, राइट? तो वो सेंसेशनलाइज़ कर रहे हैं। तो इस इनसेंसिटिविटी को देख के मिच को गुस्सा भी आता है मतलब वो
कि ये किस तरीके के लोग हैं, क्या है, बट मौरी इससे भी अफेक्टेड नहीं है कि उसको एक तरीके से सेंसेशनलाइज करके न्यूज बना के व्यूज के लिए भेजा जा रहा है। तो वो कहता है कि देखो, इवेंचुअली प्रॉब्लम तो ये है ना कि मैंने उनको बता दिया कि मेरी आवाज चली जाएगी धीरे धीरे, राइट? तो अभी जो करना है तुम्हें वो अभी कर लो। और फिर वो बताता है कि मैंने बाकी सब अपॉइंटमेंट्स भी अपनी कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि अब मेरे से ज्यादा बोला नहीं जाता, राइट? तो मुझको लगता है कि नहीं, मुझे भी जाना चाहिए, बट मौरी फॉर श्योर कहता है नहीं, दैट दिस इज इम्पोर्टेंट। So Mori reflects that many people are in constant rush, desperately searching for meaning. He believes that their frantic pace is because they haven't found meaning in their lives. Mitch counters that once people start running, it is hard to stop. Right? So, what is the impact of meaning making in life? What meaning does life have? Right? That is one question that they're dealing with. So, we could have multiple answers, right? And we could have no answer to that question simultaneously. But the idea is that यू नो मॉरी बोलता है कि लोग कॉन्स्टेंटली मीनिंग के पीछे भागते रहते हैं कि इसको चेस करें, इसको चेस करें, ये मेरी लाइफ को पर्पस देगा, ये मेरी लाइफ को पर्पस देगा। और ये जो कांस्टेंट रश है, राइट, कि अब ये अब ये अब ये अब ये अब ये जो है इसलिए होता है क्योंकि उनको अभी तक अपनी लाइफ का कोई मीनिंग मिला ही नहीं। तो मिच कहता है तो जब ये कैसे लोग रोकेंगे? जब एक बार आप भागना शुरू कर देते हो किसी भी चीज के पीछे, तो बड़ा मुश्किल है अपने आप को रोक। तो मौरी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जब आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाते हैं लोगों के साथ, यही सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली व्हेन यू आर गॉन, पीपल विल ओनली रिमेंबर यू फॉर हु यू आर। दे विल नॉट रिमेंबर योर मनी, दे विल नॉट रिमेंबर योर सक्सेस, दे विल नॉट रिमेंबर व्हाट यू वर, but they will only remember the kind of relationship that they had with you. So फिर मिच का ध्यान जाता है कि बात तो सही बोल रहा है। इसके बाद इतने सारे लोग आते हैं और वो ध्यान देता है कि हर इंसान के साथ इसका कितना अच्छा कनेक्ट है। मिच फिर बोलता है कि मुझे ना आपके जैसा फादर चाहिए था, राइट? और मौरी की जो रिलेशनशिप थी उसके इमोशनली डिस्टेंट फादर के साथ, वो भी जो है उसको समझाती है कि दे आर इन क्लोज रिलेशन, राइट? एंड मौरी इवेंचुअली जब वो गुड बाय वाला सीन होगा तो मौरी भी बोलता है कि आई वुड, इफ आई हैड अनदर सन आई वुड हैव वांटेड हिम टू बी यू, राइट? तो एक तरीके से एक फादर सन सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बन जा रही है इनके बीच। द 10th Tuesday we talk about marriage. So अब मिच जो है वो मौरी जो है वो कहता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ से बात करनी है, राइट? तो मिच जो है थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है, बट फिर जो है वो अपनी वाइफ जेनाइन को बुला लेता है। और जेनाइन तो नहीं जानती है मौरी को, आज सच पर्सनली तो नहीं जानती है, बट वो कहती है कि ठीक है मैं आऊंगी मिले। और जेनीन जो है मिच को के साथ आके है मौरी के घर, और उनके वेडिंग फोटोज लाती है। और वो सब लोग आपस में बैठ के बात करते हैं और सब कुछ होता है। फिर मौरी बोलता है जेनीन को गाने के, एंड जेनीन यूजुअली करती नहीं है ऐसा, बट दैट इज ऑल्सो सम sort of impact that Maury has, that she readily agrees to it. And then Maury is in tears listening to the song. So then they talk about marriage, and Mitch talks about, the constant rise in the rate of divorce. So वो बोलता है कि मौरी बोलता है कि मतलब मिच बोलता है पहले कि ये क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं, या फिर लोग ज्यादा कॉशियस हैं, इसलिए डिवोर्स रेट किस लिए बढ़ रहा है? तो मौरी बोलता है कि देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है कोई एक लविंग पार्टनर हो इस कल्चर में आपके पास, क्योंकि ये कल्चर आपको सपोर्ट नहीं करता है, राइट? और ये डिवोर्सेस होते क्यों है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या, राइट?
वो ना तो खुद को जानते हैं, ना वो ये जानते हैं कि उनको पार्टनर में क्या चाहिए। मौरी की वाइफ है शार्लेट, और वो लोग 40 साल से एक साथ हैं। और फिर मिच पूछता है कि एक शादी टिकती कैसे है, हाउ डज अ मैरिज लास्ट, व्हाट मेक्स अ मैरिज लास्ट। सो मोरी सेज दैट रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर, द एबिलिटी टू कॉम्प्रोमाइज, open communication, and having shared values. And the most important value is that both have to believe in the importance of marriage itself. Only then a marriage can last. Now, on the 11th Tuesday, they talk about culture, right? And मौरी की हालत और डिटोरिएट हो गई है। पर वो बात करता है मिच से अबाउट कि अमेरिकन कल्चर में कितनी कितनी प्रॉब्लम्स हैं। जो इनसिक्योरिटी की बात की थी मैंने, है ना, कि लोगों को कॉन्स्टेंटली डर है जॉब्स खो जाने का। सो वो धीरे धीरे सेल्फिश होते जा रहे। Now Mitch squeezes Maury's hand in acknowledgement, realizing he's become more comfortable with expressing emotions. तो मिच जो है, जो थोड़ा अलग रहता था, जिसको अजीब लग रहा था जब मौरी ने उसको हक किया था, यू नो, अब वो धीरे धीरे जो है he's becoming comfortable with Maury and with expressing emotions as well, right? वो खुद मौरी का हाथ पकड़ लेता है। Mori clarifies that when he advocates for building one's own subculture, तो वो कहता है अगर तुमको इतनी, देखो सिंपल सी बात है, वो कहता है कि अगर तुमको इतना गड़बड़ लगता है अमेरिका का कल्चर, तो कई बारी लोग पूछते हैं कि तुम छोड़ क्यों नहीं देते, राइट? Why do you not adopt a culture that you like? Why do you still stay in America and stay within American culture? तो कहता है कि मेरे को उससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या कल्चर है अमेरिका। क्योंकि मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि जब आपको कल्चर डिफीट कर रहा है, जब आपको कल्चर नहीं पसंद आ रहा है, यू डिसलाइक द कल्चर, देन यू क्रिएट योर ओन कल्चर। वन शुड क्रिएट देयर ओन कल्चर, राइट? दैट इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट। He says, Mori clarifies that when he advocates for building one's own subculture, he doesn't mean rejecting all societal rules. Rather, individuals should decide for themselves how to think and what to value, independent of societal pressures. तो सोशल प्रेशर में नहीं आना है, सोशल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चलना है कि मेरे पास इतना पैसा होगा, इतना स्टेटस होगा, इतना गाड़ी होगा, इतना ये होगा, इतना वो होगा, तो जाके आई विल हैव अ स्टैंडिंग, and then I will have some meaning in my life. All of that is not something that we should think about. It should be about the fact that what you hold important in life. That is how you should imagine your culture to be, right? Um, um, and then he's also, concerned about how the rich control the poor. Now, audiovisual part 3, तो अब वो थर्ड इंटरव्यू जो टेड कॉपल के साथ होना है नाइटलाइन का, वो आ जाता है। नाइटलाइन क्रू आती है फाइनल विजिट के लिए, और इट फील्स लाइक मोर ऑफ अ फेयरवेल देन एन इंटरव्यू। अब मौरी का बहुत इम्पैक्ट पड़ा है कॉपल पे भी, टेड कॉपल पे भी। और मिच बोलता है कि टेलीविजन वालों को भी तुमने जो है कंपैशन सिखा दिया। तो मौरी की स्टडी में ही होता है सारा इंटरव्यू। कॉपल पूछता है मौरी से दैट इफ ही फियर्स डेथ। मौरी बोलता है कि अब मुझे उतना डर नहीं लगता, धीरे धीरे मैं डिटैच कर पा रहा हूँ अपने आप को, और मैं अब न्यूज से थोड़ा सा अलग होके म्यूजिक और लीव्स और नेचर के साथ ज्यादा कनेक्ट कर रहा हूँ। और वो बोलता है कि जैसे स्टीफन हॉकिंग ने अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए वो मशीन्स का यूज किया, वैसे वो अपनी लाइफ को एक्सटेंड नहीं करना चाहता है। वो जितना उसको लाइफ है उतना ही जीना चाहता है, बीइंग रिस्पॉन्सिव टू पीपल, showing emotions and connecting with others. That is what life means to him. And he says, जब वो ऐसा नहीं कर पाएगा, जब वो लोगों से बातचीत नहीं कर पाएगा, जब वो लोगों से के साथ मिल नहीं पाएगा, अपने इमोशंस नहीं शेयर कर पाएगा, तब it is almost like when that is gone, Maury is also gone.
राइट? तो फिर कॉपल पूछता है, अच्छा, जो तुमने बोला था कि द थिंग दैट यू मोस्ट अफ्रेड ऑफ इज दैट यू विल हैव टू डिपेंड ऑन समबडी टू वाइप योर बॉटम। सो ही सेज कि हाँ, अब वो हो गई है सिचुएशन मेरी। बट वो कहता है, डोंट लेट गो टू सून, बट डोंट हैंग ऑन टू लॉन्ग। राइट? तो बहुत जल्दी लाइफ को छोड़ना भी नहीं है और बहुत देर तक पकड़े भी नहीं रहना है। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, राइट? दैट इज हिज अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। So he says that, the final lesson for people is that love each other or die. Now, on 12th day, they talk about forgiveness. Mori अपनी past pride और vanity को regret करता है, बोलता है कि वो जो है लकी रहा कि उसको एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली। राइट? को लगता है लकी क्या है इस कंडीशन में, मतलब इतना तो वो सफर कर रहा है, वो अपने आप को लकी कैसे कह सकता है? तो मौरी बताता है कि आई मोर्न माई dwindling टाइम बट आई चेरिश द चांस इट गिव्स मी टू मेक थिंग्स राइट। As Mitch sits quietly, Maury suddenly asks him to look at him. Maury, with tears in his eyes, tells Mitch, if I could ever have another son, I would like it to be you. Right? तो मिच थोड़ा इस बात से परेशान सा होता है। उसको ऐसा लगता है कि उसका अपने फादर हैं और अगर वो मौरी को मान लेता है अपना फादर तो यू नो it would be like a betrayal towards his own father, but he feels कि in a moment like this, in a deeply emotional moment like this, and when a person is dying, that it doesn't really make sense to feel any sense of betrayal. So the 13th Tuesday, they talk about the perfect day. मौरी अब जो है अपनी बॉडी को एक जैसे शेल की तरह देख रहा है कि मेरी सोल जो है इस बॉडी से डिटैच होने वाली, राइट? एंड ही फील्स दैट डेथ इज एज नेचुरल एज लाइफ। मिच देखता है कि उसकी कैसी हालत बन गई है। ही इज ऑलमोस्ट ही इज ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ चाइल्ड एंड बहुत ही उसका बुरा हाल है। लव, he says, Mori reflects that finding peace with dying is essential for truly living. Love, he says, allows us to die without really disappearing as we live on in the hearts of those we touched. Right? So love, why is love the central message? Because he feels that, the people whose life you've touched, only they will remember you. You will die. Death is inevitable. You are not going to live forever. But death, what does it end? It just ends a life. It does not end a relationship. People will still remember you for who you are if you have had, displayed love towards them. तो मिच पूछता है कि अगर तुमको मौका मिलता कि यू जस्ट कुड रिवर्स योर इलनेस, तो बोलता है कि नहीं, मैं वो नहीं करना चाहता क्योंकि इस इलनेस ने मुझे बहुत चेंज कर दिया है। मुझे लाइफ के बड़े-बड़े क्वेश्चंस को समझने की जो है ताकत दे दी है। और अब जो है आई विल नॉट लाइक टू गो बैक टू हाउ आई वाज़। सो अब मिच जाने वाला है तो मौरी फिर पूछता है उससे कि तुम्हारे अपने भाई से कुछ बात हुई? तो मौरी मिच बोल देता है कि नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। फिर वो बोलता है कि तुम जो है अपने भाई की जो उसकी विश है उसको एक्सेप्ट कर लो, उसके साथ जो है परेशान मत हो, क्योंकि ये रिश्ते नाते लव पे चलते हैं, कंपटीशन पे नहीं कि तुम जो है कोशिश करोगे तो वो यू नो कर ही लेगा। पर मैं फिर भी पूछता है कि ये ऐसा क्यों है कि मेरा भाई मेरे से हेल्प नहीं लेना चाहता है, मेरे से बात नहीं करना चाहता? ये देखिए, there is no formula to relationships. They have to be negotiated in loving ways with room for both parties. Love isn't about winning, but more about being as concerned with someone's life as you know. ठीक है? पर मिच अभी भी कन्विंस नहीं होता है, वो बोलता है कि कोई बात नहीं, you will reconnect with him. So the day before Mitch's next visit, Charlotte called him to tell him that Maureen's condition has worsened.
और अब उसका एंड नियर है। 10 बज रहे हैं पर मौर्य अभी भी सोच रहा है, उसने खाना नहीं खाया है। पर फिर भी मिच जो है उस रेस्टोरेंट से लेकर आता है। क्यों लेकर आता है? क्योंकि वो बिलीव करता है कि एक ट्रेडिशन, एक छोटा सा ट्रेडिशन जो है वो रखना चाहिए, स्पेशली इन द एंड मोमेंट्स ऑफ somebody's life, to keep alive your relationship, to keep alive your connection. The little rituals that you perform are absolutely necessary, right? तो वो दोनों गुड बाय का मोमेंट्स आ जाता है, दोनों बहुत जो है इमोशनल हैं और बहुत दे क्राई एंड देन मिच सेज दैट आई डोंट नो हाउ टू से गुड बाय। बट मौरी कहता है कि यही तरीका है। उसका हाथ पाट करता है, अपने चेस्ट पे रखता है और बोलता है दिस इज हाउ वी से गुड बाय, राइट? सो दिस इज द एंड, बिकॉज नाउ कंक्लूजन क्या होगी कि Mitch realizes that Molly is dead and he dies on a Saturday morning. And जो है मिच को पता चलता है कि अच्छा वो जिस दिन फ्यूनरल अटेंड कर रहा है उस दिन ट्यूसडे ही है, और जिस दिन वो पहली बारी मौरी से मिला था उस दिन भी ट्यूसडे था। ठीक है। और जो है वो अपने ब्रदर से रीच आउट करता है, उसका भाई जो है इवेंचुअली उस थोड़ा सा रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाता है। बुक का आइडिया वो प्रेजेंट करता है, बुक पब्लिश हो जाती है जिसके थोड़ा कवर जो मेडिकल बिल्स का था मौरी के वो हो जाता है। और जो है मिच क्लोजेस बाय आस्किंग रीडर्स इफ they've ever had a teacher, someone who saw them as a raw but precious thing that with wisdom could be polished to be a proud shine, because he says कि क्या आपके पास कोई भी ऐसा टीचर कभी रहा है जो कि ये समझता हो आपके बारे में कि यू आर अ रॉ प्रेशियस थिंग, और अगर उसको थोड़ा पॉलिश किया जाए तो यू विल टर्न आउट टू बी यू नो वेरी ग्रेट, क्योंकि मौरी ने उसकी इस चीज को पहचाना था। So this brings us to the end of the memoir, but we'll just quickly go over the themes. सुधा मूर्ति वाला वाला आर्टिकल वाला भी हम थोड़ा देखेंगे, बट यू नो in lesser detail than this one, because all of those stories are anyway not really, they're different episodes. They're not talking about only one character. Of course, the common thread is Sudha Murthy, but they're still talking about different characters and different episodes from her life. So Mori showed that accepting, ये पहला थीम है, learning to die in order to live. So Mori showed that accepting mortality could provide clarity on life's most important lesson. तो हमें एक्सेप्टेंस लेकर आनी है, पीस लेकर आनी है, और ये इस अवेयरनेस के साथ जीना है दैट लाइफ इज गोइंग टू एंड इन डेथ, एंड जो भी हमारे पास है अभी, वी आर सपोज टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, एंड वी हैव टू कनेक्ट मीनिंगफुली विद द वर्ल्ड। मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट का मतलब मोरी का ये नहीं है कि यू हैव टू, जैसे कि मिच का भी तो एक तरीके से यही पर्सपेक्टिव था कि to make the most of it, because he feared that death is going to come, so I should have to make the most of life. But how was he making the most of his life? He was focusing on making money. He was focusing on success and security. But he realizes with his connection with Mori that it is actually meaningful relationships. It is love that is central, and that is going to give him real pleasure as opposed to money. Now, there are universal values that are talked about in the memoir. That is what we have spoken about, such as love, forgiveness, friendship, importance of human connection. Maury's wisdom gained through a lifetime of reflection and his proximity to death, इससे मिच को एक नई इंसाइट मिलती है इनटू लाइफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। एंड ये भी कोई भी जो चीज है किसी एक रिलीजन से, किसी एक जेंडर या एक किसी क्लास या रेस से नहीं आती है। So this is all applicable to everyone at all times, which is why
It is talking about universal values. And then Mori is identified as a teacher of life and a teacher for life, right? So a teacher of life because he's imparting these life lessons, right? And a teacher for life because even until the end of his life, he does not give up teaching because he's, at the end of his life, he's thinking of these life lessons to impart, right? And then on his tombstone also, he wants this engraving that a teacher for life, right? So this is the then he also talks about designing a personal culture. We have spoken about that. Key wealth and cult, wealth and status, fame, fortune, सक्सेस के पीछे भागने के बजाय आप जो है अपना एक कल्चर बनाओ क्योंकि इंडिविजुअलिज्म कंज्यूमरिज्म मटीरियलिज्म ये सिर्फ हमारे अंदर फियर ग्रीड लोनलीनेस एलिनेशन ये सब बढ़ाता है और हमको ट्रूली ह्यूमन होने का एहसास नहीं देता सो you have to reject whatever norms do not align with your own values and your own sense of purpose rather than being trapped in the uh, in the web of societal expectations, right? So you just focus on the values that are most necessary for you. And for Mori, it was very evident that meaning came for him from relationships, from community, and spiritual growth than um, success, commercial success. तो आप क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से इस बुक के बारे में इस बुक को किस ये क्रिटिक किया गया है किस क्या क्या इस बुक के बारे में कहा गया है सबसे पहली चीज इसको सेंटिमेंटल और सिंपलिस्टिक कहा गया है जैसा कि मैं शुरुआत में बोल रही थी क्लास के कि it is overly emotional, right? It has a very strong emotional appeal, which can be praised also, but it verges on the border of sentimentality. The sentiment hai, matlab, just that emotional pull is the strongest in the book. And it is very simplistic. It is not offering any new philosophy of life. It is borrowing heavily from Eastern philosophies. And it is not offering anything new. बहुत ही सिंपल वे से लाइफ के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बोला गया या कुछ नया ओरिजिनल भी नहीं बताती है जैसा कि whatever we've seen it seems to be very simple. It seems to be simple in terms of not very simple to implement. It might be it might be very difficult to implement, but it does not offer a more detailed, a more deep perspective, a more complex perspective in order to how to look at life, right? And you know, then the story sounds too perfect. It seems like, Mori is least affected by things. There is not a lot of focus, and it feels unreal to a point, wherein, as I've been telling you that, caregivers and family members and people who undergo these terminal illnesses, they have far more complex understanding of life than what is represented in this memoir, right? So they also do not really appreciate uh, the teachings, so to say. They find it too simple and too unreal for people who suffer from these kind of conditions. All right. So this brings us to a close of this particular unit, Unit 1 from Life and Literature paper. Now, if you have any questions, you can let me know, or otherwise, I will quickly go through the next unit that we have, which is Sudha Murthy's Wise and Otherwise. Do you have any questions, anybody? Clear हो गया है ये? All right. सिंपल है ऐसा कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है इन टेक्स्ट में जो थोड़ा डिफिकल्ट था
वो मैंने पाथेर पांचाली वाला यूनिट इसीलिए पहले कवर किया। ठीक है। सुधा मूर्ति वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट इस तरीके से हो जाता है क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस, मतलब जब अभी मैं क्वेश्चंस शेयर करूंगी तुमसे तो तुम्हें दिखेगा कि थोड़ा सा इन, क्योंकि वो एनेक्डोट्स हैं और उनके बारे में कभी कभी वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अदरवाइज इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। सो सुधा मूर्ति के बारे में जानते हैं हम। You know about Sudha Murty? Very famous on social media. You might have seen her somewhere. So she's the wife of Narayan Murthy. Do you know Narayan Murthy? He's the founder of Infosys, right? So Sudha Murthy herself is a very popular writer. She studied engineering. She was one of the first women in India to study engineering. Then, she is a social reformer. She was selected as a member of Rajya Sabha. She writes for children as well. She was a short story writer as well, right? And she was awarded the Padma Bhushan as well. So she's a very prolific, very important figure. But she's known for her lucidity. She's known for, a very humorous, a very direct, a very forthright approach uh, in her uh, statements in her life. So let us, just introduce the what this collection is really about. So this is a collection of articles. It is not a novel. It is a collection of articles that she was writing. Um, and what is the backdrop to this collection? That is something that we need to understand. As I already said, Sudha Murthy is the wife of Narayan Murthy, who was the founder of Infosys. Now, Sudha Murthy was also a co-founder of this organization, right? And we know that India has a lot of billionaires. ऐसा नहीं है कि हमारे देश में of course, the resources are unevenly distributed, but there are people who earn a lot of money and, that philanthropic feeling, that kind of giving and that kind of charity seems to be a little low, right? So this is something, altruistic spending by wealthy industrialists is not the norm in our country, right? So maybe if you've worked at organizations or if you've heard about organizations, you would have heard about something called CSR, right? What is CSR? It is corporate social responsibility. So big corporations, all of these big industries and which make a lot of money and then, they it is identified that they also have a responsibility of giving back to the society and to the world, right? And therefore, there are CSR programs that are run at times in major organizations. So, Wise and Otherwise is a collection of 51 articles that Sudha Murthy wrote in a column, which was a fortnightly column in New Sunday Express. तो न्यू संडे एक्सप्रेस क्या है? न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर में कॉलम आते हैं, कॉलमनिस्ट होते हैं न्यूज़पेपर्स के, ठीक है? यानी एक आर्टिकल का सेक्शन मान लो, ठीक है? तो उसमें फोर्टनाइटली यानी हर फोर्टनाइट यानी 14 दिन में, ठीक है? हर 2 हफ्तों बाद जो है एक कॉलम में आर्टिकल आता था सुधा मूर्ति का। और ये उन्होंने लिखना शुरू किया था व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश। और ये आर्टिकल्स आर बेस्ड ऑन सुधा मूर्ति's experiences while she was working as the chairperson of Infosys Foundation. तो इन्फोसिस तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, अपने एल्ट्रुइज्म और फिलांथ्रोपी को देखते हुए इन्फोसिस फाउंडेशन बनाई थी इन लोगों ने, सुधा मूर्ति ने 1996 में। And it was funded entirely by Infosys, and it focuses on the areas of education, healthcare, women empowerment, and destitute care. अब सुधा मूर्ति के बारे में क्या है अलग कि she engages a lot. She has a lot of personal involvement in this foundation. Right?
फॉर एग्जाम्पल यू नो अबाउट टाटा, राइट? टाटा ग्रुप का भी काफी फिलेंथ्रोपिक अप्रोच रहता है, राइट? बट what sets apart Sudha Murthy is how she is, you know, she's constantly occupied, invested in engaging with people. And as a writer, she's very observant of people and of society. And, she talks about the valuable lessons that she's learned from her father, which have guided her in her social mission. So, she also finds different kinds of people, right? Because she's meeting so many new people. So she reflects on human nature as well. तो द फर्स्ट आर्टिकल इज ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम द हार्ट। अब इसमें क्या होता है कि एक कूली का बेटा है, हम हनुमान अथप्पा, जो कि जिसकी 8th रैंक आती है कर्नाटका स्टेट एग्जाम्स में। और उसकी न्यूज़पेपर में फोटो आती है, फोटो देख के सुधा मोती जो है थोड़ी इम्प्रेस होती है। और फिर सोचती है कि व्हाटएवर ही वांट्स टू डू इन कॉलेज, उसको स्पॉन्सर करेगी इन्फोसिस फाउंडेशन, शी विल फाइनेंस इट, राइट? सो वो जो है बोलता है कि हर महीने उसको 300 रुपए चाहिए एक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। और सुधा मूर्ति जो है 1800 रुपीज उसको हर 6 मंथ्स में प्रोवाइड करवाती, राइट? वही जो उसने मांगा 300 रुपए हर महीना, तो उस हिसाब से 1800 रुपए 6 महीने के हो गए। तो शी गिव्स हिम दैट मैन। But even she is very surprised when she receives a packet from Hanuman Natapka, which has, which when she opens the packet, she sees 300 rupees there, right? So वो बोलता है कि उस महीने वो जो है वेकेशंस थी, तो वो 300 रुपए उसको नहीं चाहिए थे, क्योंकि वो कॉलेज अपने हॉस्टल नहीं रहा। तो वो सिंपल सी चीज से बहुत टच हो जाते हैं कि कितना ऑनेस्ट लड़का है, कि इसने वो पैसे रख लिए अपने लिए, जबकि एक वो पुअर कूली का बेटा है, मतलब ज्यादा रिसोर्सेस तो है नहीं। पर जो है वो स्टिल ही हैज केप्ट दिस, he did not keep this money, he has he returns that money। जब नहीं है जरूरत तो वो नहीं लेगा। And this is one theme that we feel uh, reoccurs constantly in the narrative, because so what are the core ideals that we see in Sudha Murty's narrative? She is she focuses on compassion, on humanity, on a kind of a principled approach towards life. Now I'll be sharing the study material now instead of this, because it will be easier, because these are anyway short sections, right? So I hope the study material is visible to you. So we read the first one. We read about the first one. देखो इसमें कुछ कुछ जो है ना, उनमें से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ये वाला पहले वाला हमने कर लिया। ह्यूमन फॉइबल सेकंड आर्टिकल है। इसमें जो है मतलब फनी इंस्टेंसेस भी होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि वो जाती है एक ऑफिशियल विजिट पे, और एक ऑफिशियल का घर पे जाती हैं। तो बच्ची बहुत अच्छा होता है, 2 साल का बच्चे का उसका स्किल्स वो दिखा रहे होते हैं। तो सुधा मूर्ति वाज यू नो शी कॉम्प्लीमेंट्स के, नहीं अच्छा कर रहा है बच्चा। तो जो है फादर वो क्रेडिट ले लेते हैं, बोलता है नहीं नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ ना, तो ये मेरे ऊपर गया है इसलिए ऐसा है। तो ओके, फिर थोड़ा सा और बातचीत होती है, फिर पता चलता है कि अ, वो बोल देता है फादर कि मैं जो है मेरा गोल्ड मेडल था, मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हूँ और मेरे को गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है? तो फिर थोड़ा मोती और पूछती है, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग हैं, और है ना, तो पता चलता है कि वो बंदा जो है वो एक्चुअली उसी कॉलेज से उसी ईयर जिस साल सुधा मूर्ति पास आउट हुई थी, उसी साल पास हुआ था। और
Actually, Sudha Murthy was the one who had won the gold medal. तो बोलते हैं जाके लेकर आओ अपना गोल्ड मेडल, ठीक है, एंड फिर अच्छे से सुनाते हैं. So you see that she's, very direct, very forthright. She is one person who does not like any sort of dishonesty at all, and any sort of this showing off business at all. So next story जो है, just a second, please. So the next one is regarding. तो नेक्स्ट है इन सायद्री हिल्स अ लेसन इन ह्यूमिलिटी. राइट, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जाती है ट्राइबल विलेज में, कर्नाटका में. और वहां पर जो है शी मीट्स ट्राइबल विलेज हेडमैन बाय द नेम ऑफ थंडप्पा. राइट, फिर वो पूछती है, रेन वाला सा सीजन होता है, वो पूछते हैं बच्चों को क्या दिक्कत आती है यहाँ पे. बोलते हैं कि मेनली दिक्कत यह है कि वो रेनी वेदर में आ नहीं पाते स्कूल, और कपड़े नहीं सूखते और मुश्किल में वो रहते हैं. तो वो अगले कुछ हफ्तों बाद आती है और अम्ब्रेला और कपड़े लेकर आती है बच्चों के लिए. तो ठंडप्पा को देती है ना, बच्चों को देने के लिए. पर ठंडप्पा जो है, इट डज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. वो भी कहता है कि आपको जो है हमारी तरफ से ये लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा? जूस. ठीक है. तो वो सोचते हैं कि यार, ये थोड़ा ही द पुअर ट्राइबल मैन, आई शुड नॉट बी एक्सेप्टिंग गिफ्ट फ्रॉम हिम. But then he says that if you cannot accept gifts from us, we cannot also accept gifts from you. So she feels that, such high principles are there still. कि अगर you cannot take without giving, right? Even तो ये जो है लोगों के अलग अलग नेचर को भी दिखा रहा है. फिर डेथ विदाउट प्रीफ. एक नेबर होता है मूर्ति, सुधा मूर्ति के, जहाँ पे जिसकी मदर की डेथ हो जाती है. कई कुछ दिनों तक वो अवॉइड करती है वहां पे जाना. बट जब फाइनली जाती है तो देखती है बड़ा फेस्टिव सा माहौल है, आराम से लोग जो है इधर उधर की बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं. तो ऐसा माहौल है कि वो पहचान भी नहीं पा रही कि भाई डेथ किसकी मदर की हुई थी. जब वो फाइनली जाने लगते हैं तब उसको पता चलता है कि अच्छा, जो ये होस्ट था उसी के मदर की डेथ हुई थी. राइट. तो जब वो उसकी वाइफ से बात करती है, तो वाइफ कहती है कि मतलब वो उसको कंडोलेंस दे रही होती है, वो कर रही होती है, कहती है कि अरे नहीं, बहुत हमारे तो इट वाज अ गुड रिडल्स फॉर अस बिकॉज शी वाज अ स्ट्रोक पेशेंट, शी वाज बेड रिडन. राइट, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ हर. और जो है हस्बैंड यानी उनका बेटा भी जो है मानता है इस बात को. तो मुझे इस बात से बहुत हैरान हो जाती कि अपनी मदर की डेथ से या अपनी फैमिली मेंबर की डेथ से लोग कैसे नहीं अफेक्ट हो रहे हैं. क्या ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू बची ही नहीं है? दैट इज हाउ दे आर टॉकिंग अबाउट देयर ओन मदर एंड देयर ओन फैमिली मेंबर. अब नेक्स्ट जो होता है वो अ, बताती है कि अपने फादर की एक स्टोरी, अपने जो उसके फादर बताते थे बारी बारी. वो बताते हैं कि एक ऑपरेशन थिएटर में, इंग्लैंड के हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन चल रहा था. अब जो प्रोसीजर था उसके हिसाब से नर्स एक होती थी जिसको चेक करना होता था इस सर्जरी के दौर से पहले कितने मॉब्स थे, और आफ्टरवर्ड्स वो दोनों सेम होने चाहिए थे. ठीक है, जिससे कि कोई भी ऐसी चीज छूट ना जाए. तुमने इंसिडेंट सुने होंगे ना, जो न्यूज में आते हैं कि किसी के पेट में कैंची छूट गई, कुछ छूट गया, है ना. तो एक नर्स अपॉइंटेड थी जिसको वो चीज चेक करनी थी. तो इस इंसिडेंट में क्या हुआ था कि एक नर्स जो थी वो वहां पे खड़ी थी और वो बोलती है कि जब डॉक्टर मांगता है इंस्ट्रूमेंट्स की
नीडल वगैरह जो है पास कर दो, और तो वो कह देती है कि नहीं, एक मॉप तो मिसिंग है अभी। तो मैं नीडल तो नहीं दे सकती आपको, स्टिच नहीं कर सकते पेशेंट वापस। तो सर्जन जो कहता है कि सर्जन जो है उसको धमकाता है, उसको गुस्सा करता है कि मैं डिसमिस कर दूंगा तुमको अगर तुमने नहीं दिया मुझे अब तो। पर जब वो फिर फाइनली नीचे देखता है तो उसको वो मिसिंग मॉप मिल जाता है। तो वो उसको बुलाता है नर्स को, तुम्हें डर नहीं लगा, तुम्हें ये नहीं लगा कि मैं तुमको डिसमिस कर दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कहते हैं कि नहीं, मैं तो बस वो जो मेरे जॉब थी, जो मेरा काम था, वही फॉलो कर रही। तो तुम देख रहे हो कि हर एक स्टोरी, हर एक आर्टिकल में छोटे छोटे एपिसोड, छोटे छोटे इंसिडेंट से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन बताया जा रहा है, कोई ना कोई वैल्यू एस्टैब्लिश हो रही है। अब एक ओल्ड मैन का एजलेस विजडम की बात होती है। मूर्ति जो है भवानीपट्टनम जाती है और उड़ीसा में, और वहां पर वो और ट्राइबल लोगों को देखती है प्लेटफॉर्म में। उनकी हेल्प, उनकी लैंग्वेज नहीं जानती तो वो एक इंसान से, एक इंटरप्रेटर से बात करते हुए जो है हेल्प लेती है। तो एक व्यक्ति होता है जो लगभग 100 साल का होगा, वो उससे बात कर रहा होता है। और वो पूछती है कि अच्छा, आपको पता चला कि इंडिया आजाद हो गई है? तो वो कहता है कि नहीं, मतलब वाइट कंपनी सरकार है अभी भी। तो वो उसको प्रूफ दिखाने के लिए दिखाती है कि ये देखो नोट है, और अशोक चक्र है इस पे, तो इंडियंस हैं जो है बोल। वो कहते हैं अच्छा, ऐसे ही कोई भी कागज के टुकड़े से थोड़ी ना जो है पता चल जाएगा कि ये हो गया। And then he's also completely unaware of currency and paper and all of that, right? He's dismissive that, you know, a piece of paper buying things. तो यही मेन विजडम है कि जब आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है तो आप कोई चीज कैसे ले सकते हो? क्योंकि बार्टर सिस्टम में तो यही होता था कि आपके पास कोई चीज होती थी, आप वो उसके एक्सचेंज में कोई और चीज जो आपको चाहिए होती थी, राइट? तो ये ट्रांजैक्शन कि आप किसी को बस कागज का टुकड़ा दे रहे हो, ये उससे आप चीज कैसे ले रहे हो, वो उसको समझ नहीं आते, राइट? एंड दैट, इफ यू थिंक अबाउट इट, इट इज अ वेरी वाइज थिंग टू से, राइट? कि जब आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है तो आप कैसे कुछ ले सकते हो, राइट? So this she feels is, you know, something very wise that gets done. In India, the worst of both worlds. So यहाँ पे क्या होता है कि एक आदमी जो है एक ओल्ड मैन के साथ आता है, और उसको वहाँ छोड़ के चला जाता है ओल्ड एज होम में, ठीक है? तो वो जो है उसको हेल्प करती है सुधा मूर्ति, और पैसे भेजती है ओल्ड एज होम, और उसके बारे में पूछती रहती है। तो कुछ समय बाद पता चलता है कि वो बहुत बीमार है, और जो है वो बोलते हैं कि कोई अ, उसके रिलेटिव को बुला लो। जब जब उसके किसी रिलेटिव को बुलाया जाता है तो सुधा मूर्ति को लगता है कि ये तो ऐसा पहचाना पहचाना चेहरा है। फिर जो है वो पूछती नहीं, बट उस वक्त, ठीक है, एकदम से कि ये कौन है रिलेटिव। फिर उसके बाद वो बता देता है कि मैं उसका बेटा हूँ। तो सुधा मूर्ति शॉक हो जाती है कि तुम अपने फादर को ऐसे छोड़कर चले गए, और तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हारे फादर भी नहीं है? तो बोलता है कि मेरी वाइफ और मेरे फादर की बनती नहीं थी, तो मेरे को यही सोल्यूशन मिला। फिर बोलता है मेरे फादर का कोई बैग होगा। तो वो बैग मिलता है उसे, जिसमें उसकी पासबुक होती है और 1 लाख रुपए जो है होते हैं, जो कि फादर ने अपने सन के नाम कर दिए थे। तो मूर्ति कमेंट करते हैं कि इंडिया में हमारे पास वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड है। चिल्ड्रन निग्लेक्ट देयर एज्ड पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स जो है तब भी routinely leave their property to their children, right? So then the next one is living through change. Murthy now goes to visit a friend on Diwali, और क्या लेकर जाते हैं वो? कुछ ऑर्फनेज से जो स्वीट्स बच्चे बनाते हो वहां पे, वो स्वीट्स लेके जाती है। तो वो बताती है कि अब तो जो है
साल भर स्वीट्स मिलती हैं, अब तो दिवाली का वो क्रेज नहीं रहा। तो वो कहती है अब जो स्वीट्स आती हैं मेरे को वो मैं एक ऑर्फनेज में दे देती हूँ। तो वो दोनों, और जहां से मूर्ति स्वीट्स लेकर आई थी और जिस ऑर्फनेज को वो स्वीट्स डोनेट कर देते हैं, वो सेम ही ऑर्फनेज है। राइट, सो ये बहुत ही, लाइक वो देख रहे कि किस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही है। फिर वो देखती है कि दो औरतों को बात करते सुनती है मैरिज प्रोस्पेक्ट्स की। अ, तो वो सुनती है उनकी ऑब्जर्वेशन से इम्प्रेस भी होती है। बट ये भी नोटिस करती है कि ये लोग ऑलमोस्ट मैरिज ब्रोकर्स बन गए हैं। लेडीज हैव बिकम मैरिज ब्रोकर्स। फिर एक इंसिडेंट है जब टेलीग्राम्स बैड हो गए थे, तो एक बार उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड लता उसको एक टेलीग्राम भेजती है, जिसमें लिखा था फादर एक्सपायर्ड स्टार्ट इमीडिएटली। तो फटाफट जो है भागती है मूर्ति सोच के कि उसके फादर की डेथ हो गई है। बट पहुंचती है तो पता चलता है कि उसकी फ्रेंड के फादर की डेथ हुई थी। उसने माय फादर लिखने की बजाय केवल फादर लिख दिया था। सो ऐसे यू नो सिंपल से इंसिडेंट्स भी हैं। अ मैन टू क्लेवर बाय हाफ। तो इन्फोसिस में जो है एक प्रोजेक्ट चालू किया था इन्फोसिस फाउंडेशन ने, अ लाइब्रेरी फॉर ईच विलेज, जहाँ पे 4,000 लाइब्रेरीज फॉर चिल्ड्रन बनाई गई थ्रू आउट कर्नाटका। तो एक दिन एक आदमी आता है और बोलता है कि मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति का। सुधा मूर्ति को जाके बोलता है, ठीक है। और बोलता है कि सुधा मूर्ति जी ने मुझे बोला है कि अपनी 100 कॉपीज बुक्स की लेकर आओ और पेमेंट कलेक्ट कर लेना, ठीक है। और इस तरीके से वो बहुत सारी जो है अलग ऐसे क्लेम्स बनाने लगता है कि मैं तो उनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, उन्होंने ही मेरे को बोला है और ये सब। तो उसको पता चल जाता है कि बहुत डिसऑनेस्ट इंसान है, सुधा मूर्ति का फ्रेंड बता के अपने आप को जानते पहचानते नहीं और किस तरीके से कर रहा है, तो उसको भेज देते। अब बोर्न बिट्रेड ऑन राखी डे, राइट। तो इसमें क्या होता है कि मूर्ति जो है तारा के बारे में बताती है, जो कि एक फॉर्मर सेक्स वर्कर होती है। तो उसकी बहुत इच्छा होती है रीडिंग एंड राइटिंग की। तो एक दिन जो है ऑथर उसको एक टेम्पल के सीढ़ियों पे देखती है और राखी वाला दिन होता है। तो वो जाके उससे अक्का बोलकर एड्रेस करके बात करने जाती है। पर तारा बहुत ही ज्यादा अक्का सुन के वो बहुत ही एकदम से शाटर हो जाती है और रोने लगती है। फिर वो बताती है मूर्ति को कि जब उसके पेरेंट्स जो है उनकी डेथ हो गई थी, तो वो कूली की तरह काम करती थी अपने भाई को बड़ा करने के लिए। पर जब उसका भाई आ, जब मतलब वो जब सिर्फ 12 साल की थी, तो उसके भाई ने ही उसको जो है सेल कर दिया, राइट, एज टू एन एजेंट इन अ रेड लाइट एरिया। So she's, absolutely shaken by that incident. A lesson in life from a beggar. This is the 12th article, right? So she talks about the demeanor, she talks about the reason for change, कि वो बेगर जो है, एक उसकी फ्रेंड हुआ करती थी मीना, राइट, जो कि बहुत सिनिकल थी लाइफ में, उसको हर चीज से प्रॉब्लम होती थी, हर चीज के बारे में कंप्लेन करती थी। तो मिलती है उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रही होती है, पर अचानक से मीना उनसे मिल जाती है और बातचीत होती है। देखते हैं, बहुत ही बदल गई है, वो तो बहुत ही खुश है। तो वो पूछती है कि क्या हो गया। तो वो समय बताती है कि मेरे घर के सामने ना एक बेगर बैठता था और जो है अ, वो और उसकी ग्रैंड डॉटर जो है, दोनों के दोनों उसको खाना पीना देते थे। तो उसका जो है रियलाइज कर लिया उसने कि मेरी लाइफ इससे कितनी बेटर है। और उसके बाद उसने उसका पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ चेंज हो। फिर वो बताती है कि कैसे लोग जो हैं हमारी अपनी इंडियन हिस्ट्री को भूलते चले जा रहे हैं। दो बच्चे मिलते हैं उसको एयरप्लेन में जब वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रही होती है।
और उसके पास रानी लक्ष्मीबाई का एक स्टैचू होता है, उसको अवार्ड में मिला था। वो स्टैचू अलग से सीट पे रखा होता है, दो बच्चे आके बैठते हैं उस पर, दो टीनेजर्स, और वो देखते हैं और वो उनको पता ही नहीं होता है कि कौन है। तो वो जो है सुधा मूर्ति इस बात से बड़ी अफेक्ट हो जाती है कि बच्चे जो है आजकल की यूथ को हमारे हिस्ट्री के बारे में, हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। फिर वो बताती है उनको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, कि वो किस तरीके से फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। फिर ये एक फनी सी स्टोरी है, पॉज देन क्योर। क्या होता है कि वो ट्रेन में लोग जो है एक दिन ट्रैवल कर रही होते हैं सुधा मूर्ति, और जो है एक लेडी, एक यंग लेडी, बहुत बात होती है, वो बातें कर रही है, सुधा मूर्ति का सर दर्द हो जाता है। इतनी बातें करती है, फालतू की बातें, बॉलीवुड स्टार और ये और वो, राइट। फाइनली मूर्ति जो है अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और रब करने लगती है ना। तो वो उसको हेडेक की एक बॉटल पकड़ा देती है, एक बाम की बॉटल हेडेक के लिए, और कि ये बहुत काम नहीं करता है, राइट। और फिर पता चलता है कि वो सेल्स गर्ल ही थी उसी कंपनी की, उस बाम की। तो एक तरीके से वो कमेंट करिए कि खुद ही सर दर्द कराओ और खुद ही उसका जो है इलाज दो। दैट इज हाउ द सेल्स पर्सन इज सपोज टू वर्क। दैट इज हाउ द प्रोडक्ट सेल्स विल गो अप। आप सर दर्द करा दें और सेल्स बढ़ जाएंगी, राइट। सो स्टोव बर्स्ट और डाउरी डेथ्स, ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग। तो एक सुधा मोती की गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड होती हैं जो कि उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहाँ पर यू नो बहुत सारी लड़कियां जो कि बर्न वार्ड में लेके जाती हैं, और ये स्टोव बर्स जो एक्सीडेंटल स्टोव बर्स होते हैं, तो वो वहां पर एक लड़की से मिलती है बेड नंबर 24 पे। वो बोलती जाती है कि मैं जो है, मेरे फादर ने बड़ी मुश्किल से मतलब मेरी पढ़ाई छुड़वा के मेरी शादी कर दी। मेरे इन लॉज मुझे मिसट्रीट करते हैं, मेरे पेरेंट्स भी मुझे नहीं सपोर्ट करते, और मुझे बोला गया है कि यहाँ पे बोलना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, जबकि मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड ने ही मुझे जलाया है, राइट। तो वो बड़ी परेशान हो जाते हैं सुधा मूर्ति। और फिर पता चलता है कि वो बेड नंबर 24 की पेशेंट मर गई, और मोस्ट ऑफ दीज गर्ल्स आर आल्सो प्रेग्नेंट। सो दिस इज अ प्रेग्नेंट यंग लेडी हु डाइज फॉर द दिस इज अ डाउरी डेथ, ऑफ कोर्स। फिर देयर इज अनदर स्टोरी। सो ऐसे ना सारी सारी स्टोरीज ऑफ कोर्स वी विल नॉट बी एबल टू डिस्कस। The idea is that there are different categories of stories, because there are 50 stories in here, 50, 51. So you will have to read them on your own. We will be, in the next class, I will just briefly talk about the critical analysis, and then I will share with you the question papers, and we will just quickly discuss them. And you can take screenshots of the papers as well, so that you know how what kind of questions are asked in the exam. All right. So we will continue at 3, and I will share the question papers with you. This is an easy paper, provided you just go through the stories, connect with the message that is being told in them, and they're also very simple, very interesting. Okay. So if you have any questions, you can let me know. Otherwise, we can put an end to this class and then reconnect at 3 for the next revision class and question paper discussions.